between program memory and data memory. So one locations is allocated either for program memory or data memory, and you see the CPU is connected with the address bus and data bus. CPU is connected with the address bus and data bus. So can you make any difference between address bus and data bus? With the see the diagram. Address bus और data bus Sir, में difference है? डेटा बस हाँ बोथ डायरेक्शन में सर, एड्रेस बस सिर्फ सिंगल. Very good, very good. Address bus always unidirectional in nature, and data bus always bidirectional in nature. Remember these things. But address bus always unidirectional in nature, and data bus is always bidirectional in nature. What does it mean? Sir, तुम लोग एक बस देखे हो, एक लोकल ट्रेन देखे हो, am I right? यस सर. बस पीछे पीछे भी चला सकता है, पीछे बैक तो कर सकते हैं मगर थोड़ा बहुत दूर के लिए, मगर ऐसा पीछे भी चला सकता है, ऐसा मतलब पीछे जाएगा सिर्फ? नो सर, नहीं जा सकते। मगर लोकल ट्रेन देखे हो, दोनों साइड में इंजन रहता है। यस सर. यस सर, इस साइड से भी चला सकते हैं, उस साइड से भी चला सकते हैं। So this is nothing but a just like a data bus, just like a local train, and bus, address bus is just like any other bus. There is only one single end where only one direction it can go. Is it clear? Is it clear? yes sir. Yes sir. Now we are coming to, this is called von Neumann architecture. Von Neumann architecture. Now we are coming into the Harvard architecture. Basically, microcontroller create using Harvard architecture, but microprocessor or any processor is created basically in von Neumann architecture. So what is the Harvard architecture? Harvard architecture is nothing but a, this is CPU, this is programming memory, this is data memory. So address bus and data bus, address bus and data bus. Okay. So program memory and data memory is separate. So what are the starting address and ending address in 8085 or 8051? Now just I am discuss. What are the starting address and ending address? 00. 00 से 00 से 111. ना FFF तक. Am I right? In hexadecimal FFF 00 से लेकर FFF तक. तो मतलब you know for program memory is for 0000 to FFFF, and over here data memory also 0000 to FFFF. Is it clear? So for program memory 0000 to FFFF, for data memory 0000 to FFFF. Is it clear? Yes sir. So that is the difference between program memory and data memory. Just remember, in von Neumann architecture is the same locations, but in Harvard architecture is the different locations. So what are the outcome here? 20000H location is there. One is for program memory, one is for data memory. One is for data memory, one is for program memory, another is for data memory. So every locations have a two locations, right? Every locations have two locations. Is it clear or not? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ? Is it clear to all of you?
सर 2 लोकेशन वाला सुने। यही तो, प्रोग्रामिंग मेमोरी अलग है, डेटा मेमोरी अलग है, इसीलिए प्रोग्रामिंग मेमोरी में 00 से लेकर FF तक है, डेटा मेमोरी में भी 00 से लेकर FF तक है। तो प्रोग्राम मेमोरी के लिए एक 0000H है, डेटा मेमोरी के लिए भी एक 0000H है। मतलब एक ही लोकेशन दो दो करके है, एक प्रोग्राम मेमोरी के लिए है, एक डेटा मेमोरी के लिए है। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट 0001 एक प्रोग्राम मेमोरी के लिए है, 0001 एक डेटा मेमोरी के लिए है। मतलब लोकेशन बोलने के बाद तुमको बोल देना पड़ेगा ये प्रोग्राम मेमोरी का है क्या डेटा मेमोरी का है। इज इट क्लियर? यस सर। तो अभी बोलो इसमें मेमोरी कैपेसिटी कितना है, ये स्टडी मैंने बताया था, कितना आया था? टोटल मेमोरी कैपेसिटी कितना आया था बोलो? 64 KB सर। 64 KB। वेरी गुड। तो 8051 में क्या होता है, प्रोग्राम मेमोरी के लिए भी 64 KB हो जाएगा, डेटा मेमोरी के लिए भी 64 KB हो जाएगा। तो टोटल मेमोरी कैपेसिटी कितना होगा प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी के मिला के? 128 128 64 KB plus 64 KB is equal to 128 KB, right? Is it clear? यस सर। जी सर। ये है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में दो एडवांटेज है, एक सेम एड्रेस लोकेशन से हम ट्वाइस मेमोरी जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये 8085 होता, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर होता, तो हमारे पास मेमोरी कैपेसिटी होता था 64 KB, अभी कितना हो गया 128 KB, तो ट्वाइस ऑफ द 64 किलोबाइट, राइट? इज इट क्लियर? यस सर। दिस इज एडवांटेज नंबर 1। एडवांटेज नंबर 2, एक ही साथ प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी कैन एक्सेस। You can access program memory and data memory in the same time because it is a separate address and data bus. Is it clear? यस सर। मतलब फास्टर होगा। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में प्रोग्राम मेमोरी एक्सेस करोगे तो डेटा मेमोरी एक्सेस नहीं कर पाओगे, डेटा मेमोरी एक्सेस करोगे तो प्रोग्राम मेमोरी एक्सेस नहीं कर पाओगे। दैट इज द डिफरेंस। इज इट क्लियर? यस सर। So this is von Neumann architecture and Harvard architecture, whatever I told. So what are the capacity of address bus in 8051? Address bus and data bus capacity? KB 64 सर। हाँ बोलो। 64 के। 64 No, what is the memory capacity? Address bus. पिछला दिन बोले थे, तुम देखे नहीं हो। कितना बोले थे? कितना बोले थे? 16 बिट 16 बिट क्या है? एड्रेस बस का कैपेसिटी है। एड्रेस बस 16 बिट, रिमेंबर ऑलवेज डेटा बस 8 बिट। ओके ओके, इज इट क्लियर? यस सर। क्लॉक फ्रीक्वेंसी 12 megahertz. Clock frequency 12 megahertz. Remember these three parameter. Clock frequency is 12 megahertz. It's clear? नो सर। क्लॉक फ्रीक्वेंसी yesterday मैंने बताया था, क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होता है। क्लॉक फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है एक मशीन कितना फास्टर होगा, कितना स्लोअर होगा। जैसे मैंने बोला था 8085, 8086, इस सब के बारे में मैंने बोला था तुम लोगों को थोड़ा बहुत। याद है एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी और बोला था T इज इक्वल टू 1/f। देखो 4004 जो प्रोसेसर था उसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितना था?
बोलो रो क्लॉक फ्रीक्वेंसी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी 750 किलोहर्ट्ज। 8085 का था 3 to 5 मेगाहर्ट्ज, 8086 का था 5 to 10 मेगाहर्ट्ज। मतलब क्लॉक फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब उसका टी घट रहा है, टी घट रहा है मतलब वो मशीन उतना फास्टर हो रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अभी क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है देखो, मैंने अभी बोल सकता हूं what are the name of the processor 4000 Pentium 1 Pentium 2 Pentium 3 Pentium 4 I can speak like that or I can speak। चलो टुडे माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाएंगे हम लोगों का, क्या क्या प्रोसेसर है। एक है 4004, so that is nothing but a depend upon the speed, depend upon my clock frequency. Whatever my clock frequency is high, then I will be the faster. If my clock frequency is low, then I am also slow. Am I right? Is it clear? यस सर। तो 8085 का क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है, जो तुम लोग देखे हो अभी, 8051 का क्लॉक फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा ही है। इट्स ए 12 मेगाहर्ट्ज, इट्स ए 12 मेगाहर्ट्ज। सो किस में ये काम में आएगा? यू नो T इज इक्वल टू 1/f, so T is equal to 1/12 megahertz, that is microsecond. Okay, is it clear? यस सर। This is the number one, address bus, data bus, and clock frequency. Next, we will be coming into the architecture of 8051. 8051 के अंदर क्या क्या रहता है? Before going to 8051 में क्या क्या रहता है, first I want to speak about some registers, and I will be speak about some counter and other peripherals. What do you mean by register? I talk in the first day. What do you mean by register? मेमोरी सर। Memory, memory is not a register, but register means where you, just like your trunk, just like your wardrobe. Wardrobe means in your hostel or in your where you are staying in a mess, there may be you are purchasing some trunk, or you are purchasing some wardrobe or almirah, something like that. Am I right? Yes. है कि नहीं है? बोलो नहीं Yes, sir. है। मान के चलो तुम्हारे पास 500 टी शर्ट है, 500 टी शर्ट है। कितना है? 500। तुम कि सारा हॉस्टल में लेकर आओगे? बोलो। तुम सारा हॉस्टल में लेकर आओगे कि नहीं? यार लड़के लोग लेके आएंगे ना। कोई नहीं लेकर आएगा उतना। ये मतलब सभी थोड़ा थोड़ा चालाक है। लेकर आएगा तो क्या होगा? मान के चलो अंकिता लेकर आया 100 टी शर्ट, 100 टी शर्ट अंकिता लेकर आया। अंकिता का रूममेट है पिंकी एंड प्रिया। इन दोनों क्या करेगा? हर एक दिन अंकिता का ही टी शर्ट पहन के आ जाएगा, हर 2-4 तो गुम हो जाएगा इधर उधर, तो लेकर नहीं आता है कोई। हम लोग 4-5 ही लेकर आते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कौन सा लेकर आएंगे? मान के चलो अभी ठंडा का मौसम है, तो हम गर्मी वाला जो समर टाइम का जो क्लॉथ्स है वो लेकर आएंगे क्या? अभी जो ठंडा का जो कपड़ा है वो लेकर आएंगे? बोलो। ठंडा कपड़ा लेके आएंगे सर। ठंडा का कपड़ा लेकर आएंगे मतलब
in register we are storing the data which are recently to be used. जो अभी यूज होने वाला है उसको ही हम लोग लेकर आएंगे, उसको ही हम लोग रखेंगे. तो the register is store the data which are recently to be used. जो अभी अभी यूज होने वाला है उसको हम लोग रखते हैं रजिस्टर के अंदर, राइट? So register is not a permanent solutions or permanent locations. Your permanent location is your home. जिधर तुम सारा 500 है तो तुम 500 रख सकते हो, 100 है तो 100 रख सकते हो. This is your permanent locations, but this is not a permanent location. This is your temporary locations. Am I right? Is it clear? Yes, sir. देखो ऐसे करके रिप्लाई नहीं दोगे तो हम क्लास नहीं लेंगे. ओके, आई एम स्टॉप माय क्लास. जब तुम लोग रिप्लाई दोगे और क्लास करना चाहते हो तब clock frequency clock frequency is nothing but a পরে কথা হবে এখন না. Clock frequency is nothing but a depend upon the speed, just like in 8051 the clock frequency is 12 megahertz. Remember these things, that is the 12 megahertz clock frequency is a very important. Now question is a register. What is a register? Just like a trunk, just like a wardrobe is a register. So register means where you can store the data temporarily. Means you have maybe the 100 t-shirt, you have maybe the 100 t-shirt. Out of 100, maybe you are put it over here only the 5, only the 6. On कौन सा 5 और 6? अभी मान के चलो विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में जो यूज होने वाला है उसको हम लोग रखेंगे. Kept in the almirah or kept in the wardrobe or kept in the basket, whatever you are purchase. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Rest 95, तो 5 तुम हॉस्टल में रख दिया, 95 किधर रहेगा? जो बाकी सारा 95 तुम्हारा है घर में. घर में घर में रहेगा. रहेगा. So घर is your permanent address. घर is your permanent address. So memory locations always is a permanent locations. Memory location is nothing but a permanent address. Memory location is your permanent locations, right? And whatever you have they put in the 5 that is in your hostel, it's their temporary registers. So it's called a registers. It's called a register and it's called as a memory locations. So permanent location always is a memory locations and register is always nothing but a register. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So register where we can store the data temporarily. मतलब सर जब पावर ऑफ हो जाएगा किट के अंदर और रजिस्टर के अंदर, तब रजिस्टर का वैल्यू 0 हो जाएगा, मगर मेमोरी में जो डेटा रहेगा वो मेमोरी में रह जाएगा, उसको डिलीट नहीं होगा. इज इट क्लियर? मगर रजिस्टर यू कैन एक्सेस ऑलवेज, रजिस्टर यू कैन एक्सेस ऑलवेज, बट यू कैनॉट एक्सेस द मेमोरी लोकेशंस ऑलवेज. रजिस्टर बहुत फास्ट होता है यूज करने में, राइट? सो इसलिए रजिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. रजिस्टर के भी साइज डिपेंड करता है. 8 बिट का रजिस्टर होता है, 16 बिट का रजिस्टर्स होता है. सो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ रजिस्टर्स, राइट? सो ऑब्वियसली हर एक प्रोसेसर में, हर एक माइक्रो कंट्रोलर में सेवरल रजिस्टर्स विल बी देयर. इन 8051 आल्सो वी हैव सेवरल रजिस्टर्स, a number of registers. Some register may be 8 bit register, some register may be 16 bit register. What do you mean by 8 bit register? Means its capacity is 8 bit. 16 bit register means it's a capacity of 16 bit. 16 bit data can store in that particular register. 8 bit register means it can store maximum 8 bit data. It's clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रजिस्टर ही रहता है. हाँ, बोलो बोलो बोलो. सर रैम जो बनता है उसमें सिर्फ रजिस्टर से ही बनता है रैम. हाँ, रैम जो बनता है उसके अंदर रजिस्टर रहता है. ऐसा नहीं है सिर्फ रैम के अंदर हर एक टाइम में रजिस्टर ही रहेगा, बहुत सारा कुछ रह सकता है, मगर रजिस्टर भी रहता है. ओके, इज इट क्लियर? यस सर.
Next, I will be coming to, you know, IO-port. IO-port. What is IO-port? What is IO-port? IO-port, तुम्हारा IO-port क्या है? It's your hand, your leg, it's your IO-port. Means you can connect with the other devices. You can connect with other devices through hand or legs. Am I right? Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Means Yes, sir. मान के चलो, say this is my friend hand, this is my hand, so I can connect with my friend just like a clapping my hands. So these are the nothing but a IO port. Means one device can connect with the other devices through IO port. माइक्रोकंट्रोलर के साथ किसी का कनेक्शंस करना है, माइक्रोकंट्रोलर के साथ किसी का कनेक्शंस करना है, तो ऑलवेज कनेक्टेड विद IO पोर्ट, राइट? इट्स क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, in 8051, 4 IO port is there. 4 IO port, right? Number 1, P0, number 2, P1, number 3, P2, and number 4, P4. Sorry, P3. Port 0, port 1, port 2, port 3. Port 0, port 1, port 2, port 3. कितना पोर्ट है? कितना पोर्ट है? 4. 4, sir. हाँ, अभी बोलो, हमारा एक एक हाथ में कितना उंगली है? 5. 5. ऐसे हर एक पोर्ट का भी, ऐसा हर एक पोर्ट का भी उंगली रहता है, मतलब कितना कनेक्शंस यू कैन कनेक्ट. हर एक पोर्ट 8 बिट करके होता है इन 8051. कितना बिट का है? हर एक पोर्ट कितना बिट का है? 8 bit. 8 bit. So 8 lines, you know, you have in a particular port. So total कितना उंगली है और कितना पिन है in between this 4 port? कितना पिन्स है? कितना बिट्स है? 8 plus 8 plus 8 plus 8, that is 32 bit IO lines. Remember, 32 bit IO lines are IO port. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Very good. Next, my question is multiplexing. You know the multiplexing? Anyone? बोलो बोलो. Sir, many input. Many input. Sir, multiplexer का 1 to many और many to 1 करता है. Multiplexer, demultiplexer. ओके, तुम लोग तो एकदम डेफिनेशन में चला जा रहा हो, बहुत तुम लोग जानते हो, हम उतना नहीं जानते. हम जस्ट गिवन ए स्टोरी अगेन. अंकित, तुम अभी बाहर में हो ना? अंकित, प्लीज रेस्पॉन्स. नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट पनिश्ड यू. अंकित, Yes, sir. बाहर में हो ना अभी? सर बाहर में नहीं, रोड साइड में घर है तो उसी का आवाज आ रहा है. ना, रोड साइड में हो मतलब तुम कोई जगह में गए हो, मार्केट करने गए हो क्या? नहीं सर, तो घर में ही है सर. मतलब तुम्हारा रोड ही घर के साइड में है? यस सर. अच्छा, मान के चलो तुम बाजार में गए हो, इसीलिए तुम्हारा आवाज आ रहा है. मान के चलो. यस सर. तो हमारा एक बंदा चाहिए who can, you know, manage the market. मैनेज कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं. मतलब अंकित को, मम्मी को, अंकित को डैडी को एक पर्सन चाहिए जो बाजार करके लेकर आएगा. इज इट क्लियर? एक पर्सन अंकित हो गया जो बाजार करेगा. मगर
और एक मतलब सॉन बोलो, डॉटर बोलो चाहिए, अंकित इज अ सॉन, नॉट अ डॉटर, नॉट, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट। और एक चाहिए जो कि ना सहारा बन पाएगा। कैसे सहारा बन पाएगा? अभी पढ़ाई करेगा, नेक्स्ट नौकरी करेगा, नौकरी करने के बाद पैसा रहेगा तो मम्मी या डैडी का सहारा बन सकता है, राइट? तो एक्चुअली अंकित का मम्मी को दोनों ही चीज चाहिए। एक पर्सन चाहिए जो मार्केट फार्केट कर देगा, एक पर्सन चाहिए जो बढ़िया से पढ़ाई करेगा एंड यू नो टू बाद में मतलब एज एजेड पर्सन आफ्टर 60 इयर्स और 70 इयर्स ऑफ एज, अंकित उसका मम्मी और डैडी को देखभाल करेगा, देखेगा। पैसा रहेगा अंकित के पास, अच्छा नौकरी करेगा तभी ना देख पाएगा। माय क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अभी अंकित है एक, मगर फंक्शन चाहिए दो। इसीलिए क्या किया, अंकित का मम्मी अंकित को बोल दिया तुम सुबह 10 बजे से 5 बजे तक क्लास करो, मैंने कुछ नहीं बोलूंगा, मगर 5 बजे के बाद हमको हमारा एक काम कर देना है, हमको मार्केट कर देना है, राइट? Yes, sir. ये है मल्टीप्लेक्सिंग। अंकित खुद से चाहता है सर 5 बजे तक 6 बजे तक हम मार्केट करते हैं, 6 बजे के बाद थोड़ा सा घूमने जाते हैं, थोड़ा फ्रेंड लोगों के साथ घूमने जाते हैं और थोड़ा हम प्लेइंग करते हैं यू नो फील्ड में। तो अंकित का और एक काम बढ़ गया, एज ए प्लेयर बोलो, एज ए फ्रेंड बोलो, आफ्टर 7 to 8 और आफ्टर 6 to 7, am I right? Right, sir. So Ankit, you know, is that multiplexing with respect to time. First time he is a student from 10 to 5. After that he is nothing but a person who making the bazaar and all. Third, he is a player or he is a, you know, just like a friend. Am I right? Yes, sir. पर्सन एक ही है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग। With respect to time, I am dividing the different work. With respect to time, I am given a different work, but person is the same. Am I right? Yes, sir. सर इसमें फायदा क्या है? इसमें कुछ फायदा है क्या, फायदा नहीं है? Sir, cost बचता है। कॉस्ट बचता है। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, मान के चलो हाँ, हम हमारे लिए एक ड्राइवर लेकर आया, हम गाड़ी में आया तो हमारा एक ड्राइवर है। तो ड्राइवर क्या करता है, हमको डेली ऑफिस में छोड़ के दिन भर सोते रहते हैं गाड़ी में और बैठे रहते हैं, फिर जब जाते हैं तब फिर हमको गाड़ी में चढ़ के लेकर जाते हैं, राइट? एम आई राइट? Yes, sir. तो दिन भर उसका कोई काम है? दिन भर उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ लेकर आता है लेकर जाता है, दिन भर बैठे रहता है। तो मैंने क्या किया, उसको पढ़ाई सिखाया कि तुम पढ़ो बढ़िया से, उसको पढ़ाई सिखा के मैंने ऑफिस में उसको नौकरी दे दिया। अभी क्या हुआ, मान के चलो ऑफिस में एक किसी को रखना था तो हमको 15,000 20,000 सैलरी देना पड़ता था, मगर उसको हम एज ए होल हम दे रहे हैं शायद 30,000। तो उसमें हमारा ऑफिस का काम भी हो जा रहा है एंड हमारा ड्राइविंग का काम भी हो जा रहा है, तो दोनों एक ही जन से काम कर रहा है, इसमें हमारा भी फायदा है। हमारा क्या फायदा है, हमारा कॉस्ट घट रहा है, राइट? Yes, sir. तो टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग करने से घटता है। नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज, हाउ मेनी एड्रेस बस इन 8085 8051? एड्रेस बस कितना है? 88 sir, 8 bit. हाँ 16. 16 bit 16 बिट, वेरी गुड। क्या नाम है उसका? A0 से लेकर A15 तक। यू कैन रिमेंबर A0 से लेकर A15 तक, राइट? डेटा बस Yes, कितना बिट का है? 8 bit क्या नाम होगा उसका, बोलो? D0 to D7 sir. to D7, very good. D0 to D7, is it clear?
Next, address bus A0 to A15 are dividing into the two part. One is A0 to A7, another is A8 to A15. One is A0 to A7 and another is A8 to A15. Is it clear? Yes, sir. इसका full form क्या है? This is called lower order address bus. LOAB full form, lower order address bus. Not a this is a LOAB. This is a, it should be right lower order address bus. So it should be higher order address bus. Okay. This is a lower order address bus. This is a higher order address bus. Is it clear? Yes, sir. These one are time division multiplex. These one are time division multiplex TDM with data bus. With data bus. Okay. And create AD0 to 87 and create AD0 to 87 and create AD0 to 87. Is it clear? Is it clear? It's clear to all of you? Yes, sir. So AD0 to 87 is nothing but a called time division multiplexing. Time division multiplexing with address bus and data bus. With address bus and data bus. तुमको तो इतना देर तक मैंने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में बता ही दिया होगा, मगर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मतलब AD0 to 87 अभी क्या काम करेगा? Sometime it will be act as a address bus, sometime it will be act as a data bus. Is it clear? Yes, sir. Sometime it will be act as a address bus, sometime it will be act as a data bus. अभी छोड़ दो, अभी तो कॉलेज में है तो तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास वॉच, रिस्ट वॉच है. पहले तुम्हारा स्कूल में एक क्लास खत्म होने से कैसे पता चलता था? स्कूल में बेल वेरी गुड, बेल. हमारा टाइम में घंटा था, डंग डंग डंग, राइट? तुम्हारा टाइम में बेल है. टेक्नोलॉजी इज फार बेटर. घंटा था. घंटा था, हमारा टाइम में भी घंटा ही था. 1 घंटा मरा मतलब फर्स्ट क्लास हुआ, 2 घंटा मरा मतलब सेकेंड क्लास है, डंग 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 मतलब छुट्टी, सर. छुट्टी. वाओ, ब्यूटीफुल. सो मतलब एक पर्सन था जो क्या ना डिसाइड करता था अभी फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, थर्ड क्लास है. कभी कभी घंटा ऐसा टाइम में नहीं भी पड़ता था क्योंकि पर्सन डिपेंडेंट था ना. कोई टाइम में 5 मिनट देर में भी पड़ता है, कोई टाइम में 2 मिनट पहले भी पड़ जाता था. Am I right? Yes, sir. तो ये जो 2 मिनट पहले पड़ता था, 1 मिनट बाद में पड़ता था, ये सब भी डिपेंड करता था एक पर्सन के ऊपर. वो पर्सन का कोई नाम होगा. इधर में भी चौकीदार है, कुछ भी है. इधर में भी एक पर्सन का नाम है. When I am taking the class, you call me after 1 hour. So after वो पर्सन का जो नाम है चौकीदार है, कुछ भी है, मगर इधर में जो पर्सन का नाम है उसका नाम है ALE. ALE फुल फॉर्म एड्रेस लैच एनेबल. फुल फॉर्म एड्रेस लैच एनेबल. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जब तक ए सिग्नल हाई रहेगा, जब तक ए सिग्नल हाई रहेगा तब तक ए काम करेगा एज A0 to A7. जब तक ए लो रहेगा, जब लो रहेगा तब ये डेटा बस के हिसाब से काम कर सकता है, मगर जब तक हाई रहेगा तब तक एड्रेस बस के हिसाब से ही काम करेगा.
सर अभी क्या बोला सर, लो होने से डेटा बस के हिसाब से काम कर सकता है, नहीं भी कर सकता है सर, am I right? Is it clear? तो यस फिर सर। से बताइए सर। जब तक ALE सिग्नल हाई रहेगा तब तक AD02 AD7 एक्ट एज ए A02 A7। मतलब जब तक मान के चलो अंकित जब तक 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा तब तक इज लाइक ए स्टूडेंट्स, लाइक AD02 AD7 एक्ट एज ए A02 A7। But person is a Ankit. Sometime he will be act as a student. Sometime he will be acting as a player. Sometime he is acting as a friend. Sometime he is acting as a person who carry the bazaar and all. Am I right? यस सर। Yes, sir. So basically ALE signal जब तक हाई रहेगा तब तक AD02 AD7 act as a address bus। ये कंफर्म है। लो होने से डेटा बस के हिसाब से काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि समटाइम ये एड्रेस बस के हिसाब से भी काम नहीं करता है, डेटा बस के हिसाब से भी काम नहीं करता है, तब तक बोलते हैं लो होने से ही वो करता है। कैसे कैसा टाइम सर, कॉलेज खत्म हो गया अंकित का 3 बजे और से 5 बजे खत्म हो गया, अंकित 5 मिनट के अंदर घर चला जाएगा, ऐसा भी होता है क्या अंकित? बोलो, तुम अभी क्लास खत्म हुआ, तुम्हारा कॉलेज के बगल में ही तुम्हारा घर है, तुम 5 मिनट के अंदर घर चला जाओगे? नहीं सर। फ्रेंड रहता है, फ्रेंड के साथ बातचीत करते हैं, कभी कभी ज्यादा बातचीत हो जाता है, तुम कितना दिन नहीं देखे बाबा, 2 साल से तुमको नहीं देख रहे, तुम तो पूरा चेंज हो गया है, तुम्हारा तो अभी ऐसा ऐसा हो गया, तुम्हारा तक ऐसा ऐसा हो गया। तो ये जो प्रोसीड्योर्स है, ये जो पूरा सिस्टम्स है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे कोई गाड़ी चलाते हो तो फास्ट गियर से सेकंड गियर तुम बोलते हो सर तो हम तुरंत कर देता है, तुरंत एकदम तुरंत कर देता है, क्योंकि हम चलाते चलाते सर 10 साल हो गया चला रहा है, 20 साल हो गया सर चला रहा है। मगर जितना ही तुरंत कर दो उसके बीच में एक गैप तो रहता ही है सर, रहता नहीं है सर सो वही गैप इधर में भी रहता है, हम आएंगे बाद में। मगर जब तक ALE सिग्नल हाई रहेगा तब तक AD02 AD7 act as a address bus A02 A7, rest of the time it will be act as a data bus। Now my question is very simple sir, address bus तो आपका हो गया यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, एक ही साइड में जाता है। डेटा बस सर बाय डायरेक्शनल सर। अभी एड्रेस बस के साथ डेटा बस का जो मल्टीप्लेक्स कर दिया वो कैसा होगा सर? ए भी होगा बाई डायरेक्शनल, क्योंकि बाई डायरेक्शनल मतलब उसके अंदर यूनिडायरेक्शनल भी शामिल है। Am I right? यस सर। मगर A to A15 ए कैसा होगा? बोलो। A to 15 यूनिडायरेक्शनल। unidirectional. This is the funda. 8 to 50 is a unidirectional, but AD0 to AD7 is a bidirectional bus. Is it clear? Yes, sir. Next. So this is address bus and data bus concept is clear. And IO port also clear. Remember, this port 0 also used as a AD0 to AD7. Sir, AD0 to AD7, how many pins? 8. 8. Sir, port 0, how many pins? 8. So, ये port 0 के हिसाब से भी कम, actually port 0 का दूसरा नाम है AD0 to AD7. AD0 to AD7. Okay. Similarly, port 2
ये काम करता है एज ए पोर्ट 2, it will be worked as a A8 to A15, A8 to A15। पोर्ट का काम क्या है? किसी के साथ कोई डेटा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर देना लेना और किसी के कोई डेटा माइक्रो कंट्रोलर से बाहर देना, यही है इनपुट आउटपुट का काम। माइक्रो कंट्रोलर का बाहर का डेटा अंदर में लेना और यही पोर्ट से हम माइक्रो कंट्रोलर को डेटा को बाहर देंगे। कैसा एग्जांपल दीजिए सर? मान के चलो तुम्हारा रूम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं हम, तुम्हारा रूम में अभी कितना टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जो है जो सेंस कर रहा है, सेंसर से जो डेटा आएगा माइक्रो कंट्रोलर के पास आएगा। माइक्रो कंट्रोलर देखेगा इतना वोल्टेज आ रहा है, मतलब अभी टेम्परेचर इतना हुआ, मान के चलो 30 डिग्री हुआ, 40 डिग्री हुआ। अगर तुम इसको डिस्प्ले दिखाना चाहते हो तो माइक्रो कंट्रोलर दिखाएगा अभी दिखाओ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और तुम चाह रहे हो कोई कंट्रोल एक्शंस लाइक तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ गया है, तुम चाहते हो रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री हो, तो तुमको एसी ऑन करना है और फैन ऑन करना है, तो क्या करेगा? आपसे आप एसी और फैन ऑन कर देगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सर मतलब जो दोनों माइक्रो कंट्रोलर होगा जो आउटपुट एक दे ही रहा है माइक्रो कंट्रोलर से, एक ही माइक्रो कंट्रोलर से। सर तो जैसे आप आईओ पोर्ट का बात किए ना कि हाँ। चार पोर्ट चार होता है, है, तो एक उसमें से हम एक लोग से आ रहा है, एक से आ रहा है, हाँ, एक तो से सर टेम्परेचर आ रहे हैं, दूसरे तो से आईओ तुम पोर्ट फैन और लाइट ऑन कर रहे हो और एसी ऑन कर रहे हो और टेम्परेचर दिखा रहे हो। सर तो आईओ पोर्ट के थ्रू जितना भी डिवाइस हम लोग कनेक्ट करेंगे सारे का क्लॉक स्पीड जो होगा वो सेम रहेगा। क्यों क्लॉक स्पीड सेम रहेगा? अलग हो सकता है। क्योंकि सर जैसे मान लीजिए कोई एक मेरे पास जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो क्लॉक स्पीड है वो 12 मेगाहर्ट्ज है, और जो उससे डेटा जो रिसीव कर रहा है उसका मान लीजिए कि 7 माइक्रोहर्ट्ज है। तो मतलब वो स्लोअर है ना? हाँ स्लोअर है, तो वो वेरी गुड। उतना स्पीड से जो डेटा वो आउटपुट दे रहा है तो उसका इनपुट कैपेसिटी तो उतना नहीं होगा ना नहीं है, सर, उतना नहीं तेजी है, से वो नहीं है, नहीं ले नहीं है, पाएगा। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी सुन लो, एक डेफिनेशन तुमको हम बोल रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पीसी? पीसी इज नथिंग बट अ प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड दैट इज स्टोर्ड इनटू द पीसी, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रोग्राम काउंटर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नो सर। नो सर। हमको कैसे बोलना चाहिए? सो आई एम द फास्टर डिवाइस, यू आर द स्लोअर डिवाइस, एम आई राइट? यस सर, यस सर। So how I can speak? What do you mean by PC? Yes sir, PC is nothing but a, yes sir, program counter. Yes sir. The next instructions, yes sir, to be next instruction to be executed, yes sir. Address of the instructions, yes sir, stored into the PC, yes sir. That is the function of program counter. Yes sir. Who says the yes sir? Me. Exactly. I am sending a small volt data, you are giving me a positive acknowledgement, I am sent the another data till I am waiting for your reply. Is it clear? Yes sir, means feedback loop. Obviously, always working in this procedure. That's why whenever I explain the pin configuration, there is a pin is called ready signal. RADY. Ready signal is used to sense whether the slower peripheral is ready or not. Is it clear? Yes sir. और नहीं तो तुम प्रोग्राम लिख रहे हो, तुमको पता होना चाहिए जे तुम जिसके साथ लगा रहे हो उसका स्पीड कितना है। मतलब एक डेटा तुम सेंड करके 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड के लिए तुम डिले लगा दो, डिले लगा के नेक्स्ट डेटा भेजो। Yes. ऐसे करके तुम कर सकते हो। हाँ बोलो, नेक्स्ट कुछ? तो पोर्ट का काम क्या हो गया? कोई बाहर का फिजिकल डेटा तुमको लेना है तो पोर्ट से ले लो, कोई देना है तो पोर्ट से दे दो। मगर रिमेंबर, माइक्रो कंट्रोलर ऑलवेज वर्किंग विद डिजिटल डेटा, नॉट एनालॉग डेटा। 1 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसा नहीं है, 0 1 को लेकर काम है। इधर तुम 1 दो और 0 दो, मतलब तुम 5 वोल्ट दो और ग्राउंड दो, नो इश्यूज। इज इट क्लियर?
Yes, sir. तो तुमको मान के चलो कोई रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन करना है, रियल वर्ल्ड मतलब कोई सेंसर के साथ कनेक्शन करना है, सेंसर ऑलवेज गिवन यू द वोल्टेज और यू नो ऑलवेज गिविंग इनटू द एनालॉग सिग्नल, मींस मे बी इसका आउटपुट होगा 0 to 1 वोल्ट, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा ऐसा वोल्टेज भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर जैसे घटेगा ऐसा वोल्टेज भी घटेगा, और रिवर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेंसर के ऊपर। तो माय क्वेश्चन इज दैट ये जो वोल्टेज सिग्नल आ रहा है 1 वोल्ट आ रहा है, कोई 0.9 वोल्ट आ रहा है, 0.8 वोल्ट आ रहा है, तो इसका एक टेम्परेचर होगा। तो ये इसको कैसे माइक्रो कंट्रोलर समझेगा, इसको तो 0-1 से मतलब है। तो इसके लिए तुम लोग डिजिटल में पढ़े हो, हम लोग बाद में पढ़ाएंगे, अभी जस्ट एक व्यूज दे रहे हैं। A2D कन्वर्टर लगाना पड़ता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग सिग्नल उसके अंदर आएगा, डिजिटल सिग्नल उसका आउटपुट होगा, जो डिजिटल सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर के अंदर घुसेगा। इट्स क्लियर? मतलब डिवाइस ऐसा होगा, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर, नेक्स्ट A2D कन्वर्टर, नेक्स्ट माइक्रो कंट्रोलर। इज इट क्लियर? यस सर। नहीं तो ये डायरेक्टली इससे ले नहीं सकता है, क्योंकि ये डिजिटल डेटा लेकर ही काम करता है। It's clear to all of you, I think. So can I proceed for the next? Can I proceed for the next? ये किसी का डाउट है तो बोलो। ये किसी का डाउट है तो बोलो। किसी का कोई डाउट्स है? हम पकड़ लेते हैं, नहीं है। पोर्ट 0 and पोर्ट 2 used as a input output पोर्ट, बाहर का डेटा ले सकते हैं, दे सकते हैं, और इसका एक फंक्शन है, पोर्ट 0 जैसे काम करता है AD0 to AD7, पोर्ट 2 जैसे काम करता है हायर ऑर्डर एड्रेस बस। पोर्ट 3 का भी बहुत कुछ फंक्शन है, हम अभी नहीं बोल रहे, बाद में बताऊंगा, मगर है कुछ फंक्शंस। सो पोर्ट 0 and पोर्ट 2 also used as a address oblique data buses. Port 0 and port 2 used as a input output port as well as address oblique data buses. सर एक ही पोर्ट में आप इनपुट आउटपुट बना रहे हैं, एक ही पोर्ट में आप एड्रेस डेटा बस बना रहे हैं, क्यों सर? व्हाई? बोलो, क्यों करना चाहते हैं हम सब? क्यों हमको ये मल्टीप्लेक्सिंग करना है सर? मल्टीप्लेक्सिंग नहीं करने से क्या होता था हमारा? बोलो, कोशिश करो। एट 8051 का 1 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 40 तक पिन है। पिन मतलब समझते हो? आईसी का पिन जो रहता है 40 पिन का, 40 पिन का आईसी है। Am I right? ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर, आ गया। A8051 में 40 पिन रहता है, 1 से 20, 21 से लेकर 40 पिन्स इज देयर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अभी ये क्यों आया? ये सब हम लोग कंबाइन किया इसीलिए, नहीं तो इसका पिन ज्यादा था 100, 200, मतलब आईसी जो होता था थोड़ा लंबा होता था और थोड़ा इतना दूर तक आते थे। इज इट क्लियर? आईसी को छोटा किया, कॉम्पैक्ट किया, खर्चा कमाया, ये सब कारण में ये सब मल्टीप्लेक्सिंग करना पड़ रहा है। ये सब कारण में एक ही पोर्ट को एक इनपुट आउटपुट पोर्ट के हिसाब से भी काम करना पड़ता है, एड्रेस डेटा बस के हिसाब से भी काम करना पड़ता है, एक पोर्ट को पोर्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट के हिसाब से भी काम करना पड़ता है, एंड हायर ऑर्डर एड्रेस बस के हिसाब से भी काम करना पड़ता है। इज इट क्लियर? Yes, yes, sir. यस सर। Yes, sir. टू रिड्यूस द पिन। सो ये 40 पिन के अंदर
सिर्फ पोर्ट के लिए कितना पिन है? आईओ पोर्ट के लिए 4. है नो, कितना है? हर एक पोर्ट में तो 8 बिट करके है, तो टोटल कितना है? 32 32. पिन for 32 bit, right? Is it clear? Yes. Yes. Very good. So these are the our address bus and data bus. Next, सर 32 पिन कैसे सर? पिन तो 4 ही था ना? 4 कैसे था? 40 तो पिन है, जो 1 से 20 मैंने लिखा नहीं है सर, हम 1 नंबर लिखा, 20 लिखा, 21, 40, इसके बीच में सारा कुछ है सर। 40 पिन का IC है सर। आईओ पोर्ट के लिए तो 4 ही पिन था ना? 4 जिसमें हम पिन का लोग नहीं सर, 4 पोर्ट था, हर एक पोर्ट में 8 बिट था। हमारा एक हाथ है सर, राइट हैंड, बट उसके अंदर कितना फिंगर है? कितना है सर? 5. मगर ऐसे 8051 का हर एक पोर्ट में 8 करके पिन है। बीट मतलब बाइनरी नंबर, यू कैन स्टोर 0 और 1, मतलब एक पिन होना चाहिए उसके लिए। तो इसके लिए देखो टोटल 32 पिन है, हर एक के लिए 8 करके, 8, 8, 16, 24 एंड 32, so total 32 pins for this reason. It's clear to all of you? Is it clear? सर तो Yes, sir. 8051 में कितना पोर्ट है सर? 4 पोर्ट है, पोर्ट 0, Total- पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। टोटल 4 पोर्ट है और जितना पिन है वो 40 है। टोटल पिन है 40, इसके अंदर 32 पिन यूज हो रहा है सिर्फ आईओ पोर्ट के लिए। इसके लिए 32 पिन यूज हो रहा है ओनली फॉर only for 32 पिन यूज हो रहा है ओनली फॉर, क्या बोला मैंने? IO port. आईओ पोर्ट, राइट? इज इट क्लियर? यस सर। सो मैंने आईओ पोर्ट के बारे में बोला, अभी हम दूसरा कुछ बोलेंगे। दूसरा में पहला चीज है, तुम लोग बाकी तो कोई बातचीत नहीं कर रहा है, तो उन लोगों को तो पनिशमेंट दे नहीं पाएंगे। किसको पनिशमेंट देते हैं? जो अननोन पर्सन को। तो मैंने अंकिता को और अंकित मतलब 5506 एंड अंकिता, इन दोनों को मैंने पनिशमेंट दिया। क्लास में लेट में आया तो पनिशमेंट है 100 टाइम्स कान पकड़ के उठक बैठक। अंकिता, आर यू एग्री? अंकित, इज आर यू एग्री? Yes, No, sir. sir. You know sir, yes you are agree. So 100 बार उठक बैठक करना पड़ेगा। अभी क्या करेगा अंकित? अभी के सिचुएशंस में अंकित क्या करेगा एंड अंकिता क्या करेगा? सर कर लिए हैं, कर लिए मतलब कैमरा तो बंद है, हम तो दिख नहीं पा रहे हैं, तो हो गया सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया सर, सारा 100 कर दिए। Am I right अंकिता? Yes, sir. मगर फिजिकली एक प्रॉब्लम है। फिजिकली मैंने क्या किया, मैंने अंकिता का अच्छा फ्रेंड है पिंकी प्रसाद, एक ही रूम में रहता है, रूममेट है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में थोड़ा झमेला लगाने का कोशिश किए। झमेला होगा तो अच्छा होगा, पढ़ाई करेगा, नहीं तो हर एक टाइम में बातचीत करते रहेगा। मैंने पिंकी को बोला अंकिता 100 बार उठक बैठक करेगा, तुम काउंट करना, गलती होगा तो तुमको हम 100 टाइम्स कराएंगे। तभी पिंकी बहुत टफ हो जाएगा, 2 बार करके बोलेगा सर हमको छोड़ दीजिए और नहीं हो रहा है। मगर उस टाइम में पिंकी क्या करेगा, वेट करेगा टिल उठक बैठक नहीं होने से वो 3 नहीं काउंट करेगा। Am I right? Is it clear? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? ऐसा Yes. नहीं होता है सर। ऐसा ही होता है सर। तो 3 बार
ये जो काउंटिंग कर रहा है, देखो एक काउंटिंग होता है खुद से काउंटिंग करना, एक काउंटिंग होता है दूसरे किसी के ऊपर डिपेंड करके काउंटिंग करना। अंकिता खुद भी काउंटिंग कर सकते थे, जैसे अंकिता बहुत तेज काउंटिंग करते थे, और अभी पिंकी जो कर रहा है अंकिता के ऊपर डिपेंड करके वो उतना तेज कर नहीं पाएगा। मतलब वो डिपेंड करेगा अंकिता जब बैठेगा उठेगा उसके बाद ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करके एक ये जो हम लोग क्या करता है, एक्चुअली डिले करता है। तुम लोगों को कभी सरप्राइज क्लास टेस्ट हुआ है? हाँ या ना? सरप्राइज क्लास टेस्ट नाम सुने बहुत हो? बार हैं? स्कूल में सर। स्कूल में होता था, यस सर। कॉलेज में नहीं हुआ अभी तक। अच्छा ठीक है, हम लेते नहीं है, पहले ही बोल देता है, डरने का कोई बात नहीं है, हम कभी ऐसा लेते नहीं है। ये सब क्यों लिया जाता है? टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये अपना अपना मर्जी है। मैं हमारा मर्जी बोल सकता हूँ, मैं हम क्यों नहीं लेते हैं बोल सकता हूँ। मैं अगर दूसरा टीचर कोई दूसरा कारण में ले सकता है, हम किसी को छोटा बड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये जो सरप्राइज क्लास टेस्ट होता है एक्चुअली एक डिले प्रोग्राम। तुमको हमारा 40 मिनट का क्लास खत्म करना है, 40 मिनट्स का क्लास खत्म करना है, मगर हमको पढ़ाने का कुछ अभी है नहीं, मगर तुमको तो कुछ ना कुछ काम देके एंगेज करा के रखना पड़ेगा। एम आई राइट? तो क्या करे, मैं एक सरप्राइज क्लास टेस्ट ले लेते हैं। क्लास टेस्ट हम लोग एग्जाम क्यों देते हैं बोलो तो? सिर्फ नंबर मिलने के लिए? एग्जाम सिस्टम क्यों है बोलो? एग्जाम सिस्टम क्यों है? एनी आइडिया यू हैव? एग्जाम क्यों होता है? एग्जाम ना होने से क्या होता है? कोई नहीं जानते हो एग्जाम क्यों होता है? एग्जाम का क्या जरूरत है? जानते नहीं हो क्या? बोलना नहीं चाहते हो? हम लोग कितना पढ़े हैं वो चेक करने के लिए। ये तो एक है ही, मगर हम लोगों के लिए एज ए मिडिल क्लास स्टूडेंट, तुम लोग शायद अच्छा होगा, मगर हम लोग जैसा मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए एग्जाम होता है थोड़ा पढ़ने के लिए। एग्जाम आता है तो ही पढ़ता हूँ, नहीं आता है तो नहीं पढ़ता हूँ। तुम लोगों का एक ही कारण है, एग्जाम नहीं होने से पढ़ते थे तुम लोग? यस सर। एग्जाम देना है इसलिए हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं, नहीं तो एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाएंगे, एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम बोल के एग्जाम लेने से क्या होता है, तुम कुछ प्रिपेयर करोगे, तुम कुछ पढ़ाई करोगे। ये जो सरप्राइज क्लास टेस्ट हुआ इसमें तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं करोगे तुम, वहां जाया एग्जाम दे दिया, तो एक्चुअली तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसको एक्चुअली डिले प्रोग्राम बोलते हैं। डिले प्रोग्राम, ये डिले प्रोग्राम दो टाइप्स का होता है। एक बाहर का क्लॉक पल्स काउंट करके, जैसे पिंकी अंकिता के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अंकिता खुद से काउंट कर रहा था, ये एक क्लॉक पल्स है, मतलब अंदर से अंदर कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर। सो देयर इज अ टाइमर एंड काउंटर, you should be, it is used only specially for delay program. It is used only for delay program. So what are the requirement of delay program? delay program का क्या requirement? delay का अच्छा चीज है और बुरा चीज है? कोई requirement है delay का और नहीं है? बोलो। delay का requirement है कि नहीं है? रिक्वायरमेंट है सर। कैसा रिक्वायरमेंट? एग्जाम्पल के साथ बोलो। बहुत इजी है, बहुत इजी है, उतना सोचो मत। सर जैसे अभी क्लॉक स्पीड वाला बोल है उसमें भी डिले का रिक्वायरमेंट, अगर दोनों के क्लॉक स्पीड में एग्जैक्टली एक difference- हुआ, बहुत अच्छा दोनों चीज है, बहुत ही इजी चीज है। मान के चलो मैंने एक डिजिटल क्लॉक बना रहा है, क्या बना रहा है? डिजिटल क्लॉक, राइट? यस सर। ये जो डिजिटल क्लॉक बना रहा है, इस डिजिटल क्लॉक में तुम बोलो हमको जो सेकेंड का घंटा है वो कितना टाइम बार बार उसको इंक्रीज करना है? एक एक सेकेंड का बाद एक एक को इंक्रीज करना है। मिनट का
60 सेकंड के बाद इंक्रीज करना है, घंटा को 60 मिनट के बाद इंक्रीज करना है, तब ना जाकर डिजिटल क्लॉक बनेगा। तो 60 मिनट का डिले चाहिए, 1 मिनट का डिले चाहिए, 1 सेकंड का डिले चाहिए, तब जाकर एक डिजिटल क्लॉक बन सकता है। इज इट क्लियर? यस सर। तो डिले प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द डिले। हम लोग प्रोसेसर में क्या करता है, बाहर से ए काउंटर और टाइमर के लिए एक आईसी मिलता है, आईसी को लगाना पड़ता है, अलग आईसी लगाना पड़ता है फॉर टाइमर एंड काउंटर। बट इन 8051 इनबिल्ट 2 टाइमर और काउंटर रहता है। और मतलब जिसका टाइमर है वही काउंटर है, अलग कुछ नहीं है। कभी कभी इंटरनल क्लॉक पल्स काउंट करता है, कभी कभी एक्सटर्नल क्लॉक पल्स काउंट करता है। अभी कितना काउंट कर सकता है, मतलब जैसे अभी मान के चलो तुम 2 साल का हुए हो, 2 साल का हुए हो, तो हम लोग बोलते हैं ना तुम कितना काउंट कर सकते हो। वो बोलता है सर, वो बोलता है हम 0 to 10 काउंट कर सकते हैं, क्या 0 to 50 काउंट कर सकते हैं, 0 to 100 काउंट कर सकते हैं, ऐसा होता है ना एकदम तुम्हारा चाइल्डहुड में। जी सर। तो ये कितना काउंट कर सकता है, ये कितना काउंट कर सकता है? ये 16 बिट का है, रिमेंबर ये 16 बिट का है। 2 16 बिट टाइमर और काउंटर हर एक 16 बिट का है। 16 बिट का मतलब 0000 से लेकर FF तक काउंट कर सकता है। मतलब 16 बाइनरी नंबर, 16 बाइनरी नंबर मतलब ये जो दिखाया था मैंने, 0000 से लेकर FF तक 16 0 से लेकर 16 1 तक काउंट कर सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। हर एक के लिए 4 करे बाइनरी नंबर आएगा। तो 16 0 से लेकर 16 1, ये इतना काउंट कर सकते हैं 2 टाइमर और काउंटर से। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। 2 टाइमर और काउंटर रहता है। सर मेमोरी कैपेसिटी कितना है 8051 का? अभी बोल दिया, आज के शुरुआत में बोला फॉर हार्वर्ड आर्किटेक्चर मेमोरी कैपेसिटी कितना है? बोलो बोलो। मेमोरी कैपेसिटी कितना है? अभी तो आज बोला है। प्रोग्राम मेमोरी कितना है? 4 किलोबाइट, 64 किलोबाइट, राइट? ओके। यस सर। यस। ये 64 KB बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा लगता नहीं है प्रोग्राम के लिए, तो हर एक बार मेमोरी वेस्ट होगा। तो इसीलिए इंटरनली 4K रहता है, इंटरनली 4K रहता है। तुमको चाहो तो तुम और 60K लगा सकते हो मैक्सिमम। जैसे तुम्हारा मोबाइल फोन में शायद से 64 GB तुम्हारा मेमोरी कैपेसिटी है, और उसके बाद तुम और 1 TB लगा सकते हो। मतलब उसका कैपेसिटी उतना है, मगर इतना क्यों नहीं दिया, उतना लगाते थे तो मोबाइल का कॉस्ट बढ़ जाता था, राइट? इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। तो 4K इसका इंटरनली रहता है इन 8051 में। 8051 में 4K रहता है इंटरनली। तुम बाहर में चाहो तो एक्सटर्नली और 60K लगा सकते हो। इधर में डेटा मेमोरी में 128 बाइट्स रहता है। बाइट्स मतलब वेरी लेस। तुम चाहो तो 64 KB माइनस 128 बाइट्स लगा सकते हो बाहर से। इज इट क्लियर? जी सर। इसको हम लोग बोलते हैं रोम। एक्चुअली रोम के हिसाब से भी यूज होगा है प्रोग्राम मेमोरी। जो है 4K जो इंटरनली रहेगा वो रोम के हिसाब से रहेगा। ये 128 जो रहेगा ये रैम के हिसाब से रहेगा।
ओके ओके जी सर। नेक्स्ट रवि किधर है? रवि रवि आर यू देयर? चला गया क्या? रवि जो था, जो हमको बहुत कुछ बोला था, अभी नहीं है क्या? वाह, इट्स ब्यूटीफुल। रवि चाह ही रहा था जैसे क्लास धीरे धीरे चलते रहे। रवि नहीं है, चलो रवि को लेकर ही एग्जांपल देते हैं। शायद रवि हमको बोला था जो सब आंसर देंगे सर तो कैवास हो जाएगा सर, एम आई राइट? यस सर। तो मैंने क्या किया, नवीन आर यू देयर? नवीन आर यू देयर? अरे मोबाइल का बैटरी खत्म करके क्या फायदा है भाई, बंद करो चला जाओ, हमारा क्लास का कोई बात नहीं है, ना करना है ना करो, वो नंबर सब मिल ही जाता है, वो सब में छोड़ो, टाइम बर्बाद मत करो, मोबाइल का चार्जिंग खत्म मत करो, दूसरे काम में यूज करो। चलो नवीन नहीं है, कौन है इधर में? आकाश है? दुबे? आकाश है क्या? नहीं है? आकाश दुबे भी नहीं है? चिरंजीवी कुमार आर यू देयर? दिव्या पांडे आर यू देयर? Yes, sir. वेरी गुड। देखा, 4 जन के अंदर 1 जन है, 3 जन नहीं है, मतलब मोबाइल ऑन करके चला गया। तो मैंने एग्जांपल किसको लेकर दे, ये मुश्किल है, इसलिए मैंने बोलता है इंटरेक्शन करो, नहीं तो क्लास मत करो, कोई जरूरत ही नहीं है हमारे क्लास। हाँ क्या बोल रहा था, किससे आया है? इंटरप्ट। क्लास में वो जैसे बोल रहा था सर, सब में हाँ ना बोलेगा तो क्लास में नॉइज होगा, मींस इंटरप्ट होगा, मगर इंटरप्ट चाहिए ना, नहीं तो इंटरप्ट नहीं रहता था तो आज के डेट में देखता था जिसको हम बुलाते थे वही हाँ बोलता था, सर हाँ हाँ बोलिए, मगर अभी देखा बहुत जन नहीं है। क्यों नहीं है? इसी का कारण में नहीं है, सिर्फ अटेंडेंस का चक्कर है, सर अटेंडेंस मिल जाएगा बस, ठीक है। सो दिस इज अ कॉल्ड इंटरप्ट। सो हाउ आई कैन हैंडल द इंटरप्ट? से मान के चलो 5 जन का एक ही टाइम में क्वेश्चन आ गया मन में, सर को क्वेश्चन पूछना है, 5 जन एक साथ क्वेश्चन पूछेगा हमको, तो कैन आई गिव द आंसर 5 आंसर एट ए टाइम, डिफरेंट क्वेश्चंस? नो सर। नो सर, हम 5 क्वेश्चन का एक साथ आंसर नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके देंगे, एम आई राइट? Yes, sir. तो एक क्वेश्चंस कौन याद रहेगा, कौन याद करके रखेगा? इसीलिए मैंने शायद किसको नाम दिया, दिव्या ना क्या नाम था, वो भी चला गया क्या? हाँ बोल के ना, दिव्या है, दिव्या आर यू देयर? Yes, sir. मैंने उसको बना दिया क्लास का मॉनिटर, जितना सारा क्वेश्चंस होगा सारा की सारा अभी दिव्या को करना पड़ेगा, दिव्या एक एक करके हमको भेजेगा, एक एक करके हम उसके आंसर देंगे, उसके बाद दिव्या नेक्स्ट भेजेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे तो उसके बाद नेक्स्ट भेजेगा। तो अभी क्या करेगा, दिव्या के पास मान के चलो 5 जन एक साथ क्वेश्चंस किया, वो उसके अंदर रखेगा, वो कितना भेजेगा हमको कितना भेजेगा बोलो? 1 सर। हमको 1 भेजेगा, राइट। वो आंसर दे देंगे तो नेक्स्ट भेजेगा। अभी दिव्या को 5 जन एक साथ किया था क्वेश्चंस, मगर दिव्या जो करेगा वो तो एक प्रायोरिटी के हिसाब से करेगा,
वो तो एक पायरिटी के हिसाब से करेगा, है ना। शायद दिब्बा को एक साथ आकाश, अंकित कुमार मिश्रा, अंकित कुमार, अंकिता नाग, ये 4 जन एक साथ क्वेश्चंस किए थे, 4 जन एक साथ क्वेश्चंस किए थे। मगर दिब्बा के पास शायद दिब्बा का बेस्ट फ्रेंड है अंकिता, मतलब यू नो द फ्रेंड। तो दिब्बा किसका क्वेश्चंस पहले भेजेगा हमको? फ्रेंड का। मतलब अंकिता का जो क्वेश्चन है वो पहले भेजेगा हमको, राइट? Yes, sir. मतलब अंकिता इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग दिस 4 पीपल। तो हर एक का अलग अलग प्रायोरिटी लेवल है, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसको पहले भेजेगा, जिसका प्रायोरिटी कम है उसको बाद में भेजेगा। तो इसको हम लोग जो दिब्बा को हम एक नाम दिया आज से, उसका नाम है इंटरप्ट कंट्रोलर। क्या कंट्रोलर? इंटरप्ट कंट्रोलर। उसके पास सारा मैसेज आएगा, वो एक एक करके हमको भेजेगा, इसीलिए दिब्बा का नाम है इंटरप्ट कंट्रोलर। वो सारा इंटरप्ट खुद के अंदर लेगा, एक एक करके सर को भेजेगा। दिस इज कॉल्ड इंटरप्ट कंट्रोलर। वो भी माइक्रो कंट्रोलर आईसी के अंदर ही रहता है। एक्चुअली हम लोग बाहर में देखेंगे, मतलब 851 और प्रोसेसर के टाइम में देखेंगे तो ये इंटरप्ट कंट्रोलर बाहर से लगाना पड़ता है, मगर ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इनबिल्ट रहता है, राइट? सर तो डीमल्टीप्लेक्सर भी तो यही होता है ना सर? डीमल्टीप्लेक्सर बोल सकते हो, डीमल्टीप्लेक्सर एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली है क्या, इसके अंदर 5 रहेगा, एज पर प्रायोरिटी एक एक करके भेजेगा आपको। तुम डीमल्टीप्लेक्सर के हिसाब से भी बोल सकते हो, मगर ऐसा चीज नहीं है, मैसेज एक्चुअली भेजता है, ठीक है। यस सर। Next and the last one, that is communications. There are 2 type of communications. One is called serial communication and another is called parallel communications. Are you know about the names serial communication and parallel communications? नो सर। No sir, very good. और कोई जानते हो? अरे नो ही तो कम से कम 2 बोलो जो दोनों नहीं जानते हो। अंकिता तुम्हारा घर किधर है? सर बरियातू रांची। बरियातू रांची, वेरी गुड। अंकिता तुम्हारा कलकत्ता में कोई रहता है? नो सर। कलकत्ता में कोई नहीं रहता है, वेरी गुड। कौन बात कर रहा था हमारे साथ? शिवम ना, क्या नाम? पहला क्वेश्चन किसका था? शुभम बैनर्जी, वाह ब्यूटीफुल। शुभम तुम्हारा घर किधर है? सर धनबाद में। धनबाद में। शुभम तुम्हारा कोई बंगाल में, कलकत्ता में कोई रहता है? हाँ सर। किधर रहता है? सर प्रॉपर एड्रेस तो नहीं पता, लेकिन तुम रहता है। एड्रेस बताओ कलकत्ता के अंदर। हाँ मान के चलो शुभम तुम कलकत्ता में ही रहते हो, तुम उसी का घर में रहते हो, हम कलकत्ता में ही हैं। तो you know with respect to me and Shubham is a very less distance, am I right? यस सर। With me and Ankita कितना डिस्टेंस है? बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ना रांची? ज्यादा डिस्टेंस होगा कि नहीं? यस सर। तो ज्यादा डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस बढ़ेगा देन यू आर गोइंग इनटू द सीरियल कम्युनिकेशन मोड, एंड जब डिस्टेंस कम होगा तब हम लोग जाएंगे पैरेलल कम्युनिकेशन मोड। नाउ आई विल बी डिस्कस व्हाट इज द पैरेलल कम्युनिकेशन, व्हाट आर द you know serial communications, but concept is clear when parallel, when serial. Okay, is it clear? This is device 1. Device 1 may be SC. This is device 2. Maybe SB. SB means full form.
SC mean full form, SG mean full form. Hi re. What is SC and what is SB? What is your example? एग्जाम्पल क्या बोल रहा था? समझ में नहीं आ रहा है. दिस इज डिवाइस 3AG. अभी समझ में आया? व्हाट इज SC, व्हाट इज SB, व्हाट इज SG? बोलो, समझ में आया तो बोलो, नहीं आया तो नहीं बोलो. SC का फुल फॉर्म क्या है? बोलो. आपका नाम सर. वेरी गुड, सुदीप्त चक्रवर्ती. व्हाट इज SB? शुभम बनर्जी. वेरी गुड. व्हाट इज AG? अंकिता नाग. अंकिता नाग, sir. N. Sorry. N. Right? So these are the three devices. Two is a very closer, one is a far away from device 1 or device 2, whatever it is. Am I right? Right? यस सर. यस जब सर. डिस्टेंस कम है तो इन दोनों का बीच में हम 8 लाइन 16 लाइन ऐसा करके कनेक्शन कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक P0 P1 P2 P3 चारों जो पोर्ट बोला था वो पोर्ट से हम कनेक्शन कर सकते हैं. राइट? जब डिवाइस नजदीक होगा तब, जब डिस्टेंस कम होगा तब, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल पोर्ट. पैरेलल पोर्ट. राइट? जब डिस्टेंस स्मॉल होगा तब. राइट? जब डिस्टेंस लॉन्ग होगा तब एक ही लाइन से मैं डिवाइस 1 के साथ डिवाइस 2 को कनेक्शन करेंगे. इसको हम लोग बोलेंगे सीरियल कम्युनिकेशंस. इसको हम लोग बोलेंगे सीरियल कम्युनिकेशन. इज इट क्लियर? यस सर. अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकता है, सर 8 लाइन से जो काम हो रहा था वो एक लाइन में कैसे होगा? हाँ या ना? Yes, sir. तो क्वेश्चंस क्या क्यों नहीं कर रहे हो भाई? हम ही क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ही आंसर दे. मान के चलो तुमको AB ट्रांसफर करना है डिवाइस 1 से डिवाइस 2. AB का बाइनरी फॉर्म क्या है? ये स्टडी मैंने बोला था. A मतलब 10. 10 मतलब 8 4 2 1 क्या होगा? 1010. वेरी गुड. 1010. B मतलब 1011. Am I right? यस सर. तो ये ट्रांसफर करना है. हम कैसे करें? 1 0 1 0 1 0 1 1 ऐसे करके डेटा ट्रांसफर होगा. एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस में जाएगा. राइट? इधर हम दे देंगे तो ये रिसीव कर लेगा. इज इट क्लियर? जी सर. अभी देखो सीरियल कम्युनिकेशन में कैसे जाएगा. डेटा क्या था? 1 0 1 0 1 0 1 1. राइट? ये लास्ट में दो डेटा 1 1 1 नेक्स्ट 0 0 नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 0 next 1 next 0 next 1. डेटा ऐसे जाएगा. एक ही सिग्नल से विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पहले हाई भेजेंगे, देन अगेन हाई भेजेंगे, देन 0 भेजेंगे, देन 1 देन 0 देन 1 देन 0 देन 1. विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो डिवाइस 3 है AG है वो समझ जाएगा ये इतना देर तक ही भेजता है मतलब A 1 है. इसके बाद नेक्स्ट हाई है मतलब इसको भी 1 है. राइट?
ऐसे करके एक ही लाइन से 8 डेटा चला जाएगा। इसमें बेनिफिट क्या है? इसमें बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ओवर हियर? सर कॉस्ट इफेक्टिव है और रिसोर्सेस को भी बचा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, और नहीं तो 8 लाइन के अंदर एक लाइन भी टूट जाएगा तो ये कनेक्शन पूरा टूट जाएगा। ये एक ही लाइन में जाएगा इधर से रांची, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? सर डिसएडवांटेज क्या है? अगर कनेक्शन थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया सर, पूरा कम्युनिकेशन ही रुक जाएगा सर। मगर ये 8 के अंदर कोई भी एक टूट जाएगा तो भी कम्युनिकेशन टूट जाएगा सर, क्योंकि एक डेटा नहीं रहेगा तो डेटा का कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। सर उसमें टोटल 8 बिट बन जा रहा है, लेकिन हम लोग भेज रहे हैं 4 बिट अलग अलग। ना एक ही साथ 8 भेज रहे तो मुश्किल क्या है, इसका थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इतना भेजने में एक टाइम लगेगा। और पैरेलल कम्युनिकेशन में एक ही साथ पूरा डेटा चला जाएगा, राइट? यस सर। That is the main disadvantage of serial communications. So in 8051 on chip एक UART रहता है। Tomorrow I will be describe the architecture of 8051. UART का full form Universal Asynchronous Receiver and Transmit. Universal Asynchronous Receiver and Transmit, where एक डेटा रहता है TXD, एक डेटा रहता है RXD. Full form TXD, transmit data, RXD is receive data. Is it clear? Transmit data and receive data. Is it clear? Yes, sir. तो ये है फंक्शन UART का। TXD is the transmit data and RXD is the receive data. सर हाँ, अटेंडेंस आप ही ना ले रहे हैं सर हम लोग का? ना तुम लोग लेगा, कोई नहीं लेगा। अटेंडेंस जो चाहिए तो दो हमारा कैंडिडेट है, वो अटेंडेंस लेकर हमको भेज देगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा अभी। यही तो जो है उसका स्क्रीनशॉट। यस सर भेज देते हैं, भेज देंगे। इज इट क्लियर? सर हम लोग भेजे तो थे, जो सिंगल लाइन में जो डेटा भेजे थे वो 2 लेटर भेजे थे ना, ए और बी। मतलब 2 बाइनरी था सर, मतलब ना 2 4 बाइनरी नहीं था, 2 बाइनरी नहीं था, था एक ही डिजिट, एक एक का 4 करके बाइनरी आया था। मतलब दोनों को मिला के भेजे थे ना? दोनों को मिला के एक साथ ही तो भेजा, एक एक डिजिट तो नहीं, अलग अलग डिजिट, ए बी अलग अलग डिजिट मिला के एक साथ 8 बिट डेटा में ट्रांसमिट कर रहे हैं। हम सिर्फ दिखा 8 बिट ट्रांसफर करने के लिए कैसा होता है। यूएआरटी का फंक्शंस क्या होगा? इसके साथ पैरेलल कम्युनिकेशंस होगा, इसके पास 8 बिट आएगा, ये ऐसा फॉर्म बना के टीएक्सडी से ट्रांसमिट करेगा, और ऐसा फॉर्म से जो रिसीव करेगा इसको मिला के डेटा को कन्वर्ट करके ये भेजेगा। यही इसका काम है, पैरेलल टू सीरियल कम्युनिकेशन, सीरियल टू पैरेलल कम्युनिकेशंस। ये भी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर रहता है, यूएआरटी, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमिट। सर हाँ सर हम बोल रहे हैं कि जैसे 1010 करके जो टोटल 8 बिट है, हाँ वो अगर टोटल 8 बिट को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो उसका एक अलग वैल्यू आएगा। हाँ, हम लोग लेकिन डेसिमल इधर का कोई फंक्शन ही नहीं है, मैंने शुरुआत दिन बोल दिया है, सारा काम हेक्साडेसिमल में होगा। बोलो बनर्जी, इज इट क्लियर? सर अभी भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा। हाँ बोलो ना। सर जैसे हमको ट्रांसमिट करना है एक इंफॉर्मेशन 10 और 11, 10 और 11 इन डेसिमल हाँ, में और हेक्साडेसिमल बाइनरी में ही। जैसे ए और बी ट्रांसमिट करना है तो उसको समझना, जो रिसीव कर रहा है जो डेटा, उसको पता चलना चाहिए कि ए और बी दोनों अलग अलग डिजिट है, ए अलग है बी अलग है। तो आप जब जो सामने वाला डिस्टेंस में जो आप पैरेलल कम्युनिकेशन किया उसमें तो ए और बी अलग अलग पहुंच जाएगा 4 बिट करके, लेकिन इसमें जो टोटल 8 बिट पहुंचा तो उसको तो लगेगा कि एक कंप्लीट एक 8 बिट का कोई डिजिट है, बाइनरी डिजिट है, 8 बिट का ही तो एक डेटा है। ये इधर तुम जो गलती कर रहे हो, ये जो है 8051 में सारा का सारा वर्क होता है हेक्साडेसिमल में। देयर इज ए नो कॉन्सेप्ट
देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल। डेसिमल का इधर का कोई फंक्शंस नहीं है। तुम बाइनरी जो आएगा, क्या बाइनरी रिसीव किया इन्होंने? 1 0 1 0 1 0 1 1 रिसीव किया। हाँ सर। इधर से देखेगा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा, 4 करके बीट लेगा। ये 4 बीट मिला के क्या हो गया? बी। ये 4 बीट मिला के क्या हो गया? ए। सो हो गया ए बी। ठीक है सर, समझ गया। ओके, यस सर। हम आज इतना दूरी तक ही रखते हैं।